الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن العظیم بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ حاضرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آج ہم اپنا لیکچر نمبر 22 شروع کریں گے۔ آج کے لیکچر میں ہم شروع کریں گے الجملۃ الفعلیہ، یعنی جملہ فعلیہ۔ اس کا آج ہم پہلا پارٹ شروع کریں گے، اور آج کے اس لیکچر میں ہم جانیں گے جملہ فعلیہ کیا ہوتا ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، اور یہ اس کی بناوٹ کیسے ہوتی ہے عربی میں۔ تو آج کا لیکچر ایک انٹروڈکٹری لیکچر ہے، بہت ہی امپورٹنٹ لیکچر ہے، کیونکہ ابھی تک ہم نے جملہ اسمیہ پڑھا تھا، اب ہم جملہ فعلیہ شروع کرنے والے ہیں، اور جملہ فعلیہ میں کافی زیادہ ہم چیزیں پڑھیں گے انشاءاللہ، اور جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ کے بعد ہم کافی حد تک جو بیسک قرآنک گرامر ہے یہ ہم سمجھیں گے، اور ہم انشاءاللہ اس لائق ہو جائیں گے کہ ہم قرآن عظیم کے جو آیتیں ہیں ان کا ترجمہ ہم آرام سے کرنا سیکھ لیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس سیشن کے بعد، یعنی جملہ فعلیہ کے سیشن کے بعد، ہم کچھ قرآنک آیات اور قرآن عظیم کے کچھ چھوٹے صورتیں اٹھائیں گے، جس سے ہم پورا ترجمہ سیکھیں گے جو بھی ہم نے قواعد ابھی تک سیکھے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا لیکچر الجملۃ الفعلیہ۔ سب سے پہلے ہمیں جاننا چاہیے کہ فعل کس کو کہتے ہیں۔ جب ہم بات کرتے ہیں فعل کی تو ہمیں جاننا چاہیے کہ فعل کیا ہوتا ہے، اور یہ جملہ فعلیہ کیا ہوتا ہے، اور جملہ فعلیہ کی بناوٹ کیسی ہوتی ہے۔ اس کو جاننے سے پہلے آپ ذرا بیسک پہ آئیے۔ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ ہمارے پاس یا تو عربک میں جو بھی ایک لفظ ہوتا ہے یا تو وہ مفرد ہوتا ہے، مفرد مطلب سنگولر ورڈ، یا تو وہ مرکب ہوتا ہے، یعنی بہت سارے سنگولر ورڈز جمع ہو کے ایک مرکب بناتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس مرکب کے بارے میں ہم نے یہ جانا تھا کہ مرکب یا تو مرکبی ناقص ہوگا، جس میں ہم نے جانا کہ 4 قسم کے مرکب ناقص ہے، ٹھیک ہے۔ مرکبی ناقص کی ہم نے قسمیں پڑھی تھی۔ اس کے بعد ہم نے جانا کہ مرکبی تام بھی ہوتا ہے، اور مرکبی تام کو ہی ہم نے کہا تھا کہ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں جملہ۔ عربی میں اور قرآن عظیم میں جب ہم مرکبی تام کی بات کرتے ہیں، جملے کی بات کرتے ہیں، تو ہمارے پاس صرف 2 قسم کے جملے ہوتے ہیں، یعنی قرآن عظیم میں جو بھی آیتیں آپ دیکھیں گے یہ 2 ہی جملے ہو سکتے ہیں، جملہ اسمیہ یا جملہ فعلیہ۔ ابھی تک ہم نے جملہ اسمیہ پڑھا، اب ہم شروع کریں گے جملہ فعلیہ۔ سب سے پہلے ہم یہ جانیں گے کہ فعل کس کو کہتے ہیں۔ دیکھیں، فعل جو ہے یہ اسم کی طرح ہی ایک لفظ ہے، جیسے ہم نے اسم پڑھا اور ہم نے جانا کہ یہ لفظ کی ایک قسم ہے، اسی طرح فعل بھی ایک لفظ ہے جس میں کسی کے کام کے کرنے یا ہونے کا پتہ چلے، اور اس کام کے ہونے یا کرنے کا جو پتہ چلتا ہے کسی زمانے کے ساتھ وہ پتہ چلے۔ مثال کے طور پر میں کہوں گا کہ میں نے کھانا کھایا، ٹھیک ہے، تو جو ہم تذکرہ اس وقت کر رہے ہیں وہ کھانا کھانے کے بارے میں کر رہے ہیں، اور یہ کھانا جو ہم نے کھایا، یہ کھانا یا تو ہم نے ابھی کھایا یا اس سے پہلے ہم نے کھایا ہوگا، یعنی کوئی نہ کوئی زمانہ جو ہوگا وہ پیش نظر ہوگا جب بھی ہم فعل کی بات کرتے ہیں۔ یعنی لفظ فعل جب آپ سنیں گے، جس کو ہم انگلش میں ورب کہتے ہیں، یہ ایسا لفظ ہے جس میں کسی کام کے ہونے یا کرنے کا پایا جائے زمانے کے ساتھ۔ اور جب ہم زمانہ کہتے ہیں، ٹائم کہتے ہیں، پیریڈ کہتے ہیں، تو جیسا ہم جانتے ہیں انگریزی اردو میں ہمارے پاس یا تو ماضی کا زمانہ ہے
यानी गुजरा हुआ जमाना जिसको हम कहते हैं पास्ट, या अभी का जमाना है जिसको हम प्रेजेंट कहते हैं, उर्दू में हाल कहते हैं, या आने वाला जमाना जो अभी आएगा, जैसे अभी 1 घंटे के बाद या कुछ मिनट के बाद या कुछ दिनों के बाद या कुछ सालों के बाद, ऐसे जमाने को हम मुस्तकबिल कहते हैं। इन्हें जमाना या तो गुजरा हुआ है, या अभी जो चल रहा है वो जमाना है, या आने वाला जमाना, ये 3 जमाने। तो कोई भी काम जिसको आप देखें कि वो माजी में हो रहा हो, इन्हें गया हो, या अभी चल रहा हो, या आने वाले जमाने में हो, उस काम को या उस लफ्ज को हम फेल कहते हैं। अब फेल तो हमारे बात में समझ में बात आ गई, क्योंकि डेफिनेशन मैंने आपको दे दिया यहाँ पर। अब आपको ये जानना पड़ेगा कि जुमला फेलिया क्या होता है। तो जुमला फेलिया बहुत आसान तरीके से आप समझ लीजिए, ऐसा जुमला जो फेल से शुरू हो उसको हम जुमला फेलिया कहते हैं। जैसे हमने डेफिनेशन दे दी थी जुमला इस्मिया की, उस वक्त मैंने बताया था कोई भी जुमला जो इस्म से शुरू हो उसको हम कहते हैं जुमला इस्मिया, और कोई भी काम या कोई भी फेल या कोई भी जुमला जो फेल से शुरू हो उसको हम कह सकते हैं जुमला फेलिया। तो जुमला फेलिया ऐसा जुमला जो फेल से शुरू हो उसे जुमला फेलिया कहते हैं। और आज के लेक्चर से हमने जुमला फेलिया को बाज़ाब्ता शुरू किया। अभी तक हमने 9 लेक्चर्स में जुमला इस्मिया को जाना, उसके मुख्तलिफ चीज़ों को जाना। आज से हमारी कोशिश होगी कि जुमला फेलिया को जाने, अरबी में कुरान अजीम में इसकी इस्तेमाल कैसे हुए हैं, और जुमला फेलिया किसको कहते हैं जो फेल से शुरू हो। अब इस जुमला फेलिया के जो भी कवायद होंगे, जिस तरह भी होगा, उसको थोड़ा हम आगे पढ़ेंगे, मगर सबसे पहले हम ये जानेंगे कि फेल बनने के क्या मराहिल होते हैं, यानी कैसे आप किसी को फेल बनाते हैं। तो याद रखना चाहिए किसी फेल का लफ्ज बनने के 3 मरहले, यानी कोई भी फेल जो होता है, कोई भी काम जो जमाने के साथ पाया जाता है, उसके 3 मरहले होते हैं। ये मैं आपको बेसिक चीज बता रहा हूं कि इन्हें फेल और जुमला फेलिया की बनावट कैसे होती है। बहुत ही बेसिक बात, सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि कोई भी फेल बनाने के लिए हमें मादा यानी रूट वर्ड जानना जरूरी होता है। मादा क्या होता है या रूट किसको कहते हैं? वो मवाद यानी वो रॉ मटेरियल जिससे फेल वजूद में आता है उसको हम कहते हैं रूट या मादा। मिसाल के तौर पर आपको याद रखना चाहिए कि जो भी फेल हमारे पास आता है, अरबी में 99.9% वो 3 हरूफ का बना होता है, सिर्फ 3 हरूफ। याद रखिएगा, फेल का जो मादा है वो सिर्फ 3 हरूफ का बना होता है, सिर्फ 3 हरूफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। और इन 3 हरूफ को हम कह सकते हैं ये फेल का मादा है। यानी कोई भी जो फेल होगा उसकी जो बुनियाद होगी वो 3 हरूफ होंगे, ठीक है। उन 3 हरूफ को हम कह सकते हैं रूट वर्ड, या उर्दू में आप कह सकते हैं मादा। इन 3 हरूफ को या इन 3 जो हमारे पास हरूफ है, इस मादे को जानने के बाद हमें जानना पड़ता है वजन क्या है। वजन का मतलब है डाई। जैसे पिछले लेक्चर में जलाल साहब ने पूछा था कि ये डाई क्या होता है, वजन क्या होता है। अब थोड़ा सा इसको हम यहाँ एक्सप्लेन करेंगे। वजन यानी डाई, इसकी तारीफ क्या है? जैसे हम किसी सांचे में कोई चीज डालते हैं ताकि उसकी वो शक्ल हो जाए। मान लीजिए हमें स्टार बनाना हो, जैसे हम केक वगैरह बनाते हैं तो उसके लिए सांचा होता है। उसमें जब हम आप डाउ डालते हैं तो आप देखते हैं बेकिंग के बाद वो जो हमारा केक है वो स्टार शेप होता है, क्योंकि उसका सांचा जो था, उसकी जो डाई थी वो स्टार शेप, ऐसी सर्कल या ट्रायंगुलर हम बनाते हैं। इसी तरह फेल बनाने के लिए ये जो हमारे पास रॉ मटेरियल है उसको डिफरेंट डाइस पे डाला जाता है। यानी हम ये कह सकते हैं हमारे पास जो 3 हरूफ है उनको हम मुख्तलिफ डाइस पे डाल के उसका वजन बनाते। मिसाल के तौर पर, अभी थोड़ा सा टाइम के बाद पता चलेगा, मैं आपको मिसाल दूंगा। हमारे पास एक फेल है फा आइन लाम, 3 हरूफ, फा आइन लाम, फाला, ठीक है। अगर हम फाला को हम पढ़ेंगे फाइला, आइन के नीचे जेर लगा दी, फा और लाम के ऊपर जबर डाल दी, तो हरूफ तो 3 ही है मगर उनकी जो डाई है वो हमने चेंज कर ली। यानी अभी तक हमारे पास फा आला, फा पे भी जबर, आइन पे भी जबर, लाम पे भी जबर,
मगर हमने दूसरे में क्या कर दिया, हमने फा और लाम पे जबर बरकरार रखा और आइन के नीचे जेर कर दी। हम ये कह सकते हैं कि रूट वर्ड तीन ही है, फा आइन लाम, मगर इसकी डाई जो है, इसका जो वजन है वो डिफरेंट है, वो मुख्तलिफ है। पहले पे फ़ाअला है, दूसरे पे फ़ाइला है। तीसरी डाई हम बना सकते हैं फ़ाउला, फा पे जबर, लाम पे जबर, आइन पे पेश। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि रूट वर्ड जो है 99.9% जो फेल बनाने में यूज होता है वो सिर्फ 3 हरूफ होते हैं, मगर उनके जो सांचे होते हैं, डाई होती है, वो डिफरेंट होता है। तो हमें एक तो रूट वर्ड जानना होगा जब भी हम फेल जाने, दूसरा हमें डाई के बारे में पता होना चाहिए, तीसरा उसको कहते हैं सेगा यानी फॉर्म। सेगा क्या है, फेल से मुतालिक लफ्ज की वो मुस्तामिल शक्ल यानी अप्लाइड फॉर्म जो मादा यानी रॉ मटेरियल को मुकर्रर वजन पर डालने के बाद बनती है, उसको हम कहते हैं सेगा। नॉर्मली जो हम एक गर्दान बनाते हैं अरबी फेल में, उसके 14 सेगे होते हैं, जैसे फ़अला, फ़अला, फ़अलू, फ़अलत, फ़अलता, फ़अलना। अभी थोड़ा सा हम इसको कुछ देर के बाद पढ़ेंगे। इसको हम कहते हैं सेगा। तो अभी जब हम आगे वाले लेक्चर्स में आएंगे, आपको 3 चीजों के बारे में बार बार सुनना होगा। सबसे पहले मादा, मैं आपको बताऊंगा कि बताइए इस फेल का रूट वर्ड क्या है, और आपको पता होगा कि फेल का जो रूट वर्ड है वो 99.9% 3 हरूफ मुश्तमिल होगा। जैसे फा आइन लाम 3 हरूफ है, दाल और सीन 3 हरूफ है, काफ मीम लाम 3 हरूफ है। समझ रहे हैं बात? तो जो भी 3 हरूफ होते हैं वो किसी भी फेल का रूट होता है या मादा होता है। उसके बाद दूसरी बात जो आपको बतानी पड़ेगी वो बतानी पड़ेगी कि इस रूट वर्ड को किस वजन पर या किस डाई पे डाला गया है। ठीक है, दूसरी बात। और तीसरी बात जो आपसे पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा कि इसका फॉर्म क्या है, इस जो हमारे पास फेल है ये किस सेगे पर है। यूजुअली हमारे पास 14 सेगे होंगे, तो मैं आपको बताऊंगा कौन से सेगे पर है। उसको थोड़ा सा जब हम गर्दान पढ़ेंगे आपको ये बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आएगा। तो यहाँ पर इस स्लाइड में बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैंने आपके सामने अर्ज की कि फेल क्या होता है, जुमले फेलिया क्या होता है, और फेल बनाने के 3 मरहले होते हैं। सबसे पहले फेल का रूट वर्ड जो अमूमन 3 अल्फाबेट्स का बना होता है, अरबी अल्फाबेट्स का। दूसरा हमें जानना पड़ेगा इसका वजन क्या है, और वजन मैंने आपको बताया कि इस अल्फाबेट में जो हरकत होते हैं ज़बर ज़ेर पेश, वो अगर हम मुख्तलिफ करें तो डिफरेंट वजन होगा। और तीसरा हमें ये जानना पड़ेगा कि ये जो फेल इस वक्त है ये किस सेगे में है। यूजुअली हमारे पास किसी भी सेगे के किसी भी फेल के 14 सेगे होते हैं, तो हमें बताना पड़ेगा कि ये कौन से सेगे पर है। थोड़ा सा टाइम के बाद आपकी क्लियर चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। अब जो मैंने 3 चीजें आपको बताई यानी मादा, वजन और सेगा, अब हम यहां पर उसकी मिसालें देंगे ताकि आपको पता चलेगा कि फेल कैसे बनाया जाता है। देखिए सबसे पहले आप यहां रखिए, मादा जो है मैंने आपको बताया किसी भी फेल का जो मादा है अमूमन, जब मैं अमूमन कहूंगा तो याद रखिएगा 99.9% ये सिर्फ 3 हरूफ होंगे। मैं 0.001% इसलिए फ्रैक्शन रख रहा हूं कि कभी कभी हमारे पास 4 या 5 हरूफ भी होते हैं जो मादा बनाते हैं, मगर वो बहुत रेयर है। इंशाल्लाह वो आगे हम पढ़ेंगे, आखिर में जब हम फेल को खत्म करेंगे मैं वैसे आपको मादे भी बताऊंगा। मगर अमूमन जब मैंने आपको सामने अर्ज किया 99.9% जो मादा होता है वो 3 हरफी होता है। जैसे यहाँ पर मादा जो है ये फा ता हा, फा जबर फा यानी फा हर्फ, ता हर्फ और हा है। इसी तरह एक और मादा है दाद रा बा, इसी तरह एक और मादा है नून साद रा। ठीक है, इस मादे को यानी 3 हरफी हमारे पास जो लेटर्स है, अरबिक लेटर्स है, इनको हम एक वजन इनका हम बना सकते हैं। फा पे जबर रखिए, आइन पे भी जबर रखिए, लाम पे भी जबर रखिए, तो वजन बनेगा फ़अला, फ़अला का वजन। दूसरी शेप क्या बनेगी, दूसरा वजन, दूसरी डाई क्या बनेगी, वो बनेगा फा पे जबर, आइन पे जेर, लाम पे जबर। ठीक है, तो फा और लाम पे जबर, आइन पे हमने जेर दे दी,
تو یہ دوسری ڈائی بن گئی فاعلہ. تیسرا ڈائی کیا ہے کہ فا اور عین پہ برقرار زبر ہے، مگر ہم نے فا اور لام پہ برابر زبر ہے، سوری عین پہ میں نے پیش لگا دیا، یہ بن گیا فاعلہ. یعنی جو عموماً ہمارے پاس وزن ہوتے ہیں فعل کے، یا تو وہ فعلہ وزن ہوگا یا فعلہ وزن ہوگا یا فعلہ وزن ہوگا. مطلب پہلا اور آخری جو ہمارے پاس مادے کا حرف ہوگا اس پہ زبر ہوگی، اور بیچ والا جو حرف ہوگا عین، جیسے مثال کے طور پر یہاں پر ہے، اس پہ زبر ہو سکتا ہے، زیر ہو سکتی ہے یا پیش ہو سکتا ہے. یہ ہو گئی وزن کی بات. اب دیکھیے صیغہ کیسے بناتے ہیں. صیغہ بنائیے، اس کو اس کے ساتھ ملائیے، پھر فاعلہ کو ملائیے، ان کو اس وزن پہ لائیے، فاتح، صیغہ بنے گا فتح. داد، را اور با کو اس وزن پہ ڈالیے تو یہاں پر ہمارے پاس صیغہ بنے گا ضربا. نون، صاد اور را کو اس وزن پہ ڈالیے، بنے گا نصارا. اب اسی طرح سین، میم اور عین کو فاعلہ کے وزن پہ ڈالیے تو بنے گا سمیع. میم کے نیچے زیر، سین کے اوپر زبر، عین کے اوپر زبر، کیونکہ ڈائی جو ہے یہ والی ہم نے فالو کی. اسی طرح ہمارے پاس شین، را اور با یہ مادہ ہے، اس کا وزن آپ ڈالیے اس پر فاعلہ کے وزن پر تو بنے گا شریبا. اسی طرح عین، لام اور میم یہ مادہ ہے، ان کو ڈالیے فاعلہ کے وزن پر، بنے گا علما، علیما. اسی طرح ہمارے پاس ہے مادہ کاف، را، میم، ان کو ڈالیے فاعلہ کے وزن پر تو یہ بنے گا کاروما. کاف اور میم پہ زبر، را پہ پیش. اسی طرح ہا، سین اور نون یہ مادہ ہے، اس کو آپ ڈالیے وزن فاعلہ پہ، یہ بنے گا حسنا. اسی طرح با، عین اور دال، اس کو ڈالیے آپ وزن پر فاعلہ کے وزن پہ، یہ بنے گا بعودا. ٹھیک ہے. تو کوئی بھی فعل جب آپ دیکھیں گے اس میں سب سے پہلے آپ مادہ دیکھتے ہیں، یعنی کون سے 3 حرف ہے، ان کو صحرفی بھی کہتے ہیں. پھر ہمیں جاننا پڑے گا کس وزن پر ہے، فعلہ کے، فاعلہ کے یا فاعلہ، کیونکہ یہی ہمارے پاس 3 اوزان ہیں. اس کے بعد آپ کو بتانا پڑے گا کہ صیغہ کیا بنے گا، یعنی مادہ کو وزن پہ ڈالنے کے بعد جو اس کی اپلائیڈ فارم ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں صیغہ. ٹھیک ہے. اتنی بات کلیئر ہو گئی. جلال صاحب میرے ساتھ ہیں تو وہ اگر مائک اپنی آن کر کے بتائیں کہ اتنی بات کلیئر ہو گئی، تاکہ ہم آگے جانیں گے اور آگے تھوڑا سا پڑھیں گے. جلال صاحب میرے ساتھ ہیں. ایک سوال آپ سے یہ تھا، ابھی یہ مادہ ہم ہر حرف کا مادہ کیسے پکڑیں گے؟ ابھی آپ کو پتا ہے یہ؟ جی جی جی، بہت اچھا بہت اچھا. اس کو تھوڑا سا ابھی آپ جب انشاءاللہ کچھ الفاظ آپ کے سامنے آئیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ وہ اسم نہیں ہے، یاد رکھیے گا میں نے آپ کو بتایا یا تو ہمارے پاس قرآن عظیم میں جملہ اسمیہ ہے یا فعلیہ ہے. ٹھیک ہے. رف آئیڈیا ابھی آپ کو اندازہ ہو گیا کہ اسم کیسے ہوتا ہے، اور اسم کو جاننے کے لیے ہمیں پتا ہے کہ یا تو الف لام ہوگا کسی بھی لفظ پر پہلے، یا تو آخر میں اس پہ تنوین ہوگی. یہی ہم نے اسم کی کنڈیشن دیکھی نا. اور کچھ چیزوں میں ہم نے دیکھا کہ جب لام الف لا ہوتا ہے، جس کو ہم نے نام دیا تھا لا نفی جنس، اس وقت آخر میں جو تنوین ہے وہ غائب ہو جاتی ہے. مان لیجیے آپ کے پاس کوئی لفظ ہے، لا نفی جنس بھی نہیں ہے، الف لام بھی نہیں ہے، اور آخر پر تنوین بھی نہیں ہے، تو آپ کا غالب گمان ہونا چاہیے یہ فعل ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے سر. اب وہ فعل اب آپ کو پتا چل گئے، اب آپ کو جاننا پڑے گا کہ اس کا مادہ کیا ہے. اور عموماً جو مادہ ہوتا ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا وہ صحرفی ہوتا ہے. اب ابھی تک کیونکہ ابھی ہم نے فعل کو تفصیلاً نہیں پڑھا، ابھی تک آپ کو یہ جاننا پڑے گا کہ جو بھی ہمارے پاس نارمل فعل ہے ان کے مادے آپ کو بہت ہی کلیئرلی پتا چلیں گے، 3 حرفی ہوں گے کلیئرلی. مگر کچھ دیر کے بعد ہم کچھ اور چیزیں پڑھیں گے فعل میں، جس میں آپ مادوں کو جاننے کے لیے تھوڑی سی محنت کرنی پڑے. تھوڑا سا انتظار کریں گے، انشاءاللہ یہ بات آپ کو سمجھ میں آ جائے. ٹھیک ہے. تو مادہ جو ہے وہ صحرفی ہوتا ہے. اگر یہ اسم نہیں ہے کوئی بھی ہمارے پاس لفظ تو یہ فعل ہو سکتا ہے، اور فعل ہوگا تو اس میں 3 حرفی مادہ ہوگا. اکثر جو 3 حرفی مادے ہیں وہ بہت ایزی ہوتے ہیں، آپ آرام سے پہچان سکتے ہیں، مگر کبھی کبھی وہ آپ پہچانیں گے نہیں
पहचानेंगे भी सही, मगर वो एक्चुअल वो 3 हरफ ही नहीं होंगे, उसमें कुछ चेंजेस होंगे, वो हम इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ये तो होगा एक सवाल। और कोई सवाल? दूसरी बात ये थी कि अभी ये फतह जी इसके माने और मतलब हाँ, जैसा माने के ऊपर अभी हम थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा आप, मैं माने भी बताऊंगा। अभी सिर्फ मैं आपके सामने जो बता रहा हूं वो ये बता रहा हूं कि फेल की बनावट के 3 उसूल हैं। सबसे पहले हम मादा देखेंगे, और मैंने आपको बताया कि 99.9% जो मादा है फेल का वो सिहरफी। दूसरा मैंने आपको बताया वजन, मतलब आप देखिए फेल को जब हम 3 हरूफ को या तो हम उनको फ़ाइला के वजन पे डालेंगे, या फ़ाइला के वजन पे, या फ़ाउला के वजन पे। उसके बाद जो सेगा बनता है, जैसे आपने बताया फतह, या मैंने आपको बताया फ़ाइला, उसका तर्जुमा क्या है? देखिए अभी तक तो मैं आपको कुछ तर्जुमे बताऊंगा, मगर अक्सर और बेशतर जो तर्जुमे होते हैं, ये हमने सवाल पूछा था अपने उस्ताद से भी, हम कैसे जानेंगे? तो इसके बाद आपको डिक्शनरी यूज करनी पड़ेगी, क्योंकि कुछ अल्फाज बहुत इजी है जिनका तर्जुमा आप जानेंगे, जैसे फतह, उसने खोला, दराबा, ठीक है ना, उसने मारा, नसरा, उसने मदद की, समिया, उसने सुना, शरीबा, उसने पिया, अलिमा, उसने इल्म हासिल किया। तो कुछ हमारे पास जो अल्फाज है बहुत इजी है, मगर आगे जब आप पढ़ेंगे कुरान अजीम को, जब आपको पढ़ना पड़ेगा, उस वक्त आपको डिक्शनरी की यूज करनी पड़ेगी, और उस डिक्शनरी में जो रूट वर्ड है ना, उसी पे आपका तर्जुमा निकलेगा। इसीलिए मैंने आपको तवज्जो दी रूट वर्ड पर। आपको देखना पड़ेगा डिक्शनरी में रूट वर्ड, जैसे फाताहा, रूट वर्ड क्या है। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि फेल में रूट वर्ड की क्या इंपॉर्टेंस है। हमें सबसे पहले रूट वर्ड पता होना चाहिए। अगर आपको रूट वर्ड पता चल गया तो आप इसका तर्जुमा जान सकते हैं। ठीक है, फिर ये किस सेगे पे है, ये माजी के सेगे पे है, या जिसको हम मुजारिया का सेगा कहेंगे, आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह, उसके हिसाब से उसके तर्जुमे में जमाना पाया जाएगा कि अभी का जमाना है, आने वाला जमाना है, या गुजरा हुआ जमाना है। मगर जो उसका तर्जुमा है वो डिक्शनरी से पता चलेगा, और डिक्शनरी का तर्जुमा मादे से पता चलता है। तो आपको सबसे पहले कोई भी लफ्ज आपके सामने आए फेल का, तो उसका मादा, मादे के 3 हरूफ आपको पता होने चाहिए। इसीलिए जब हम नहवी तरकीब करते हैं कुरान अजीम की, जब हम पढ़ते हैं, हम बताते हैं इसम है, तो इसम तो बहुत आसान है जानना, मगर जब हम फेल कहते हैं तो फेल में सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि इस फेल का मादा क्या है और इस फेल का वजन क्या है। जब आपको ये 2 चीजें पता चल गई तो तर्जुमा फिर आराम से, आसानी के साथ आप डिक्शनरी को खोल के जान सकते हैं। उसमें फिर थोड़ा डिक्शनरी की वजन जरूरत पड़ती है। आयशा बहन ने लिखा वजन चेंज होने से क्या तर्जुमा भी बदल जाता है? बहुत ही अच्छा सवाल। वजन चेंज होने से तर्जुमे पे एज सच इस वक्त कोई फजर नहीं, तर्जुमे में कोई चेंज नहीं आता, मगर जब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे फिर थोड़ा सा और चीजें पेश आएंगी, उस वक्त तर्जुमा बदल जाता है। इस वक्त जो है आप याद रखिएगा, इस वक्त जो है तर्जुमे पे कोई फर्क नहीं आती जो हमने अभी तक देखा। ये सिर्फ है कि कोई हर्फ ऐसे ही पढ़ा जाता है। जब हमने पढ़ा हसुना, ये ऐसे ही पढ़ा जाता है, समिया ऐसे ही पढ़ा जाता है, शरीबा ऐसे ही पढ़ा जाता है, शरीबा शराबा नहीं पढ़ेंगे। इसी तरह अलिमा, अलिमा ही पढ़ा, अलामा नहीं पढ़ा जाएगा, फिर उसका मतलब कुछ होगा ही नहीं। तो ये बहुत ही अच्छा सवाल पूछा बहन ने, इसका मैंने आपको बता दिया। और कोई सवाल जलाल साहब? वही अभी इसके वही मैं फतह, अभी अब फतिहा बोलेंगे तो उसमें ये माने का मसला आएगा। बिल्कुल आएगा, क्योंकि फतह जो है इसका तर्जुमा बिल्कुल डिफरेंट है। फतिहा होता ही नहीं, फतिहा नहीं होता है। जैसे दराबा होगा, दरीबा नहीं होगा, नसरा होगा, नसरा या नसुरा नहीं होगा। इसका सेगा जो है ये मादा प्लस वजन के बाद जो हमारे पास अप्लाइड फॉर्म आता है वही फॉर्म यहाँ पर लिखा गया है। यानी आप मान लीजिए दराबा यहाँ पर है, दराबा के बजाय आपने पढ़ा दरूबा, तो उसका तर्जुमा होगा ही नहीं, वो उस सेगे पे आता ही नहीं। हर एक के मादे का एक वजन होता है, उसी वजन पे वो सेगा बनता है। इसीलिए मैंने आपको 3 अलग अलग किस्म के अवजान बताए, वजन बताए, ये इसी वजन पे आता है। जैसे पिछली बार मैंने आपको बताया था कि यानी अकबरू वजन मैंने बताया था, अफउला बताया था, अकबरू। उस वक्त आपने बताया था कि वजन क्या है, तो वजन वही जो मैंने आपको बताया, अकबरू वजन पे ही आएगा। अफआलू जो उसका वजन था उसी वजन पे वो अकबरू आएगा, असगरू आएगा।
अकरमु आएगा, ठीक है। एक वजन मतलब होता है डाई, यानी कोई जो लफ्ज होता है जिसको हम बयान करते हैं वो ऐसे ही डाई पे डालना पड़ेगा। आप बताएंगे उसने मारा तो आपको दरबा ही पढ़ना पड़ेगा, आप दरीबा या दरूबा नहीं पढ़ सकते, आपका दरबा का वजन दरबा ही रखना है, समझ रहे हैं बात। तो सेगा जो है वो उस मादे को जब उस वजन पे डालते हैं, उस वजन पे डालने के बाद जो उसका अप्लाइड फॉर्म बनता है उसको हम सेगा कहते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, इसमें आपने देखा कि मैंने फा ता और हा लिखा, मैंने आपको बताया मादा है, नीचे मैंने आपको बताया कि इस मादे का जो वजन है वो फ़अला है और सेगा जो बनता है वो बनता है फतहा, ठीक है, जैसे आपने यहां देखा। इसमें आपको याद रखना पड़ेगा कि ये जो फतहा है इसको हम अरबी जबान में कहेंगे फा कलिमा, यानी जो पहला कलिमा होता है उसको हम कहते हैं फा कलिमा। दूसरा कलिमा जो होता है उसको हम कहते हैं अरबी में आइन कलिमा, हालांकि यहाँ आइन नहीं, यहाँ ता है, क्योंकि हमने जो बुनियाद बनाई है वो फ़अला को बनाया है। हमारे पास वजन की जो बुनियाद है, इन्हें एक मान लीजिए एक स्टैंडर्ड फॉर्म लिया है, वो फा आइन और लाम लिया है। इसलिए हम कह सकते हैं कि पहला कलिमा जो होगा सेगे का उसको हम कहेंगे फा कलिमा, दूसरे सेगे को दूसरे कलिमे को कहेंगे जो वजन का होगा आइन कलिमा, जबकि तीसरे कलिमे को हम कहेंगे लाम कलिमा। चाहे यहां पर हमारे पास फा ता हा लिखा है, हम कह सकते हैं कि फाजबर फा ये जो है फा कलिमा, ताजबर ता जो है ये आइन कलिमा है और हाजबर हा जो है ये असल में लाम कलिमा। समझ रहे बात, क्योंकि कल जब मैं आपको बताऊंगा बताइए आइन कलिमा क्या है, फतह में आइन कलिमा, आप कंफ्यूज ना हो जाए, यहां तो आइन है ही नहीं, आपको याद रखना पड़ेगा वजन क्या था इसका, समझ रहे जलाल साहब। तो आइन कलिमा जो है वो दूसरे कलिमे को हम कहते हैं आइन कलिमा, जबकि तीसरे कलिमे को हम कहते हैं लाम कलिमा। अब आप बता सकते हैं क्यों, वजह मैंने आपको बताया, हमने स्टैंडर्ड जो बनाया है वो फ़अला को बनाया है, तो फा कलिमा, आइन कलिमा और लाम कलिमा, ये आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा। यानी सेगा बनाने के लिए सांचे की धात के तौर पर इस्तेमाल होने वाले लफ्ज यानी फ़ैल के मादे के 3 हरूफ फा आइन और लाम में जो पहला कलिमा यहाँ पर आप देख रहे हैं ये है फा कलिमा, दूसरा कलिमा जो देख रहे हैं ये है आइन कलिमा और तीसरा कलिमा जो देख रहे हैं वो है लाम कलिमा। अब देखिए दराबा में फा कलिमा कौन है जलाल साहब, दराबा में फा कलिमा दाद, वेरी गुड वेरी गुड, और आइन आइन कलिमा कौन है दराबा में, रा, और लाम कलिमा कौन है बा। माशाल्लाह, ये आपको अब याद रखना पड़ेगा कि जब भी आप कभी भी फेल पढ़ेंगे, मैं आपको बहुत सारी चीजें बताऊंगा, मैं आपसे पूछूंगा इसका मादा क्या है, आप बताएंगे इसका मादा मान लीजिए दाद रा और बा है, फिर मैं आपको बताऊंगा इसका आइन कलिमा क्या है, आपको पता होना चाहिए आइन कलिमा मैंने दूसरा कलिमा इसका बताया, क्योंकि असल में हमारी जो बुनियाद है स्टैंडर्ड है वजन की वो है फा आइन और लाम। इसी तरह फा कलिमा, आइन कलिमा और लाम कलिमा, इसी तरह नून पे फा कलिमा नून, स्वाद फा कलिमा इसके आइन कलिमा और रा जो है ये लाम कलिमा। समझ रहे बात, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे मिसाल के तौर पर ज़हाबा लिखा हुआ है, ज़हाबा में जो दाल है वो फा कलिमा है, हा है कोल्हा आइन कलिमा है और बा जो है ये लाम कलिमा, ठीक है। और याद रखना चाहिए कि अरबी जबान में जो फेल का पहला सेगा होता है वो 3 हरफी मादा बनने से पहले पहला जो कलिमा होता है वो असल में फेल माजी का पहला सेगा है, फेल माजी का पहला सेगा है, यानी जो सेगा पहले बनता है जब हम मादे को वजन पे लाके जो पहला हमारे पास सेगा बनता है, याद रखना चाहिए वो फेल माजी का पहला कलिमा होता है, पहला सेगा होता है। जैसे मैंने आपको बताया ये जो हम फेल पढ़ते हैं इसमें असल में 14 सेगे होते हैं, 14 में से 6 सेगे हाजिर के लिए, ठीक है, 6 सेगे गायब के लिए, ठीक है, और 2 जो सेगे हैं वो मुतकल्लिम के लिए, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ऐसे आपको याद रखना पड़ेगा। मिसाल जब हम कहेंगे फतहा उसने खोला, या दराबा उसने मारा, दराबा उन दोनों ने मारा, दराबू उन सब ने मारा, दराबत उस एक औरत ने मारा, ठीक है,
दरबता उन दो औरतों ने मारा, दरबना उन सब औरतों ने मारा। तो ये गायब का सेगा। अब हम आएंगे सेकंड कलमे पे। दरबता तुम एक मर्द ने मारा, दरबता तुम दो मर्दों ने मारा, दरबता दरबतुमा दरबतुमा तुम दो मर्दों ने मारा, दरबतुम तुम सब मर्दों ने मारा, दरबती तू एक औरत ने मारा, दरबतुमा तुम दो औरतों ने मारा, दरबतुन्ना तुम सब औरतों ने मारा, दरबतु मैंने मारा, एक वाहिद सिंगल मुतकल्लिम, दरबना हम सब ने मारा। तो इस तरह आप देखिए हमारे पास 14 सेगे बन गए। 6 जो है गायब के थर्ड पर्सन, 6 है हाजिर के, और 2 है मुतकल्लिम यानी फर्स्ट पर्सन। जो 6 गायब के हैं उसमें 3 मुजक्कर के, 3 मुअन्नस के। जो 6 हाजिर के यानी सेकंड पर्सन के उसमें 3 मुजक्कर 3 मुअन्नस, और जो लास्ट के 2 कलमे हैं जिनको हम कहते हैं मुतकल्लिम, ये फर्स्ट पर्सन, उसमें सिर्फ 2 ही है, वाहिद और जमा। क्योंकि जमा जो है वो 2 के लिए भी आता है और जमा के लिए भी आता है। तो ये बात आपको याद रखना पड़ेगा। इंशाल्लाह हम एक एक करके कुछ यानी हरूफ को लेंगे, मादों को लेंगे, उनको वजन पे डाल के उनका हम सेगा बनाएंगे, पूरे 14 के 14 सेगे बनाएंगे, ताकि आपको जमाना भी पता चले और आपको मुज़क्कर और मुअन्नस का अंदाजा भी हो जाए। तो मैंने जो आपके सामने ये अर्ज किया कि जो सेगा बनता है मादे को वजन पे डालने के बाद, जो पहला सेगा बनता है ये असल में अरबी में फेल का पहला सेगा होता है। और कौन सा फेल? फेल माजी यानी गुजरा हुआ ज़माना। देखिए फेल माजी किसको कहते हैं? अब मैंने आपको सामने एक चीज बताया कि जो भी कोई काम होता है इसके साथ कोई जमाना होता है, या तो जमाना गया गुजरा हो यानी गुजरा हुआ जमाना हो, या तो जमाना आने वाला है, या तो जमाना जो अभी गुजर रहा है। याद रखना चाहिए कि अरबी में जमाने की सिर्फ 2 ही किस्में हैं, या तो गुजरा हुआ जमाना जिसको हम कहते हैं माजी जैसे यहाँ पर लिखा गया है, और या तो हमारे पास जमाना है जो अभी चल रहा है और आगे आएगा, उसको हम कहते हैं अरबी में मुजारे। मुजारे का ऐसा जमाना है जिसमें दोनों जमाने पाए जाते हैं, हाल और मुस्तकबिल यानी प्रेजेंट और फ्यूचर। अरबी में सिर्फ 2 ही जमाने हैं, गुजरा हुआ जमाना पास्ट जिसको हम माजी कहते हैं, और चल रहा है जो जमाना और आने वाला जमाना एक ही है यानी प्रेजेंट और फ्यूचर जो है ये अरबी में एक ही जमाना, इसको नाम दिया जाता है मुजारे। इसको हम तफसीलन पढ़ेंगे। मैं आपको अभी एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर दे रहा हूं कि फेल माजी में यानी जिस फेल में किसी काम के गुजरे हुए जमाने में या करने हुए या होने का माने पैदा हो जाए उसको हम कहते हैं फेल माजी। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि फेल माजी के जो अवजान है वो सिर्फ 3 है, या तो फ़अला का वजन होगा, या फ़अला का वजन होगा, या फ़अला का वजन होगा। मिसाल के तौर पर आप देखिए यहाँ पर हमारे पास आइन कलमे पे जबर है तो फ़अला का वजन होगा, यहाँ पर आइन कलमे के जेर है तो फ़ाइला का वजन होगा, यहाँ पर आइन कलमे पे पेश है तो फ़ाउला का वजन होगा। यानी हम ये बता सकते हैं कि फेल माजी के सिर्फ 3 अवजान है, और वो भी फा कलमा और लाम कलमे पे कोई तब्दीली नहीं, दोनों पे जबर है। सिर्फ आइन कलमे पे फर्क आ जाता है, उस पे जबर है, जेर है या पेश। मिसाल के तौर पर अगर आइन कलमे पे जबर है तो फतहा उस एक मुज़क्कर ने खोला। मैंने आपको बताया कि पहला कलमा जो होगा वो फेल माजी वाहिद मुज़क्कर गायब का सेगा होता है। फतहा उसने खोला, जब हम कहेंगे उस तो एक मुज़क्कर, दरबा उस एक मुज़क्कर ने मारा, नसरा उस एक मुज़क्कर ने मदद की। अब जलाल साहब पूछ सकते हैं कि आपको कैसे पता चला तर्जुमा? क्योंकि मैंने ये पढ़े हैं। अब आपको भी पता चल गया है कि फतहा का मतलब है खोलना, दरबा का मतलब है मारना, नसरा का मतलब है मदद करना। असल में मतलब नहीं है, मतलब असल में है फतहुन, दरबुन, नसरुन। समझ रहे हैं बात? उसका तर्जुमा है ये चीजें। मगर जब हम इसको अवजान पे डालेंगे, आइन पे जबर, फतहा, दरबा, नसरा, तो सिर्फ एक लफ्ज आप देखिए, एक लफ्ज जिसमें 3 हरूफ और जबर तीनों पर है, तो एक लफ्ज हमारे पास पूरा अरबी जुमला हो गया। और ये जुमला जो है ये फेल का जुमला है, मतलब उसने खोला, उसने मारा, उसने मदद की। ठीक है ना? तो मतलब किसी ने मदद की, किसी ने मारा, किसी ने खोला, और जब ये खोला मतलब
गया हुआ जमाना है तो जमाना भी पाया गया, मदद भी पाया गया, और किसी ने मदद भी की या किसी ने मारा भी या किसी ने खोला भी, तो ये पूरे का पूरा एक जुमला है, जुमला फेलिया है। तो ये फतह जो है पूरा जुमला फेलिया है, दराबा जुमला फेलिया है, नसरा जुमला फेलिया है। दूसरा वजन है आयन कलमे के नीचे जेर। तो इस वजन पर कुछ हरूफ आते हैं, कुछ यानी अफाल आते हैं, जैसे समिआ, उसने सुना। मैंने आपको बताया पहला सेगा जो बनता है वो माजी का बनता है और वो मुजक्कर का बनता है। माजी मुजक्कर गायब का सेगा बनता है, वाहिद मुजक्कर गायब का पहला सेगा बनता है। समिआ उसने सुना, शरीबा उसने पिया, अलिमा उसने जाना। तीसरा हमारे पास जो वजन है फ़ेल माजी में वो है आइन कलमे पे पेश। इसमें मिसाल के तौर पर हमारे पास कुछ अफ़ाल है, करुमा तर्जुमा, वो मुअज़्ज़ज़ हुआ, यानी वो एक शख्स मुअज़्ज़ज़ मतलब उसको इज्जत मिल गई। हसना वो अच्छा हुआ, बऊदा वो दूर हुआ। तो आप देखिए ये तीनों हमारे पास ऐसे अवजान हैं जिससे हमें पता चलता है कि एक फेल जो है वो तीन हरफी किसी भी मतलब वजन पे डालने के बाद एक मुकम्मल जुमला फेलिया हो सकता है। अगला जो लेक्चर होगा उसमें हम इंशाअल्लाहुल मुस्तान जुमला फेलिया के कवायद पढ़ेंगे कि जुमला फेलिया में क्या क्या होता है। जैसा हमने पढ़ा था जुमला इस्मिया में एक मुब्तदा, एक खबर, एक मुतल्लिक की खबर, इसी तरह हमें जुमला फेलिया को भी पढ़ना पड़ेगा कि जुमला फेलिया में क्या क्या होता है। इंशाल्लाह उसको हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। आज का लेक्चर सिर्फ इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, ये जानने के लिए कि जुमला फेलिया जो है और फेल किसको कहते हैं, जमाना क्या होता है, और ये कि मादा क्या होता है, रूट वर्ड, वजन क्या होता है, और इसको कैसे अलग अलग अवजान पे हम डाल सकते हैं। मुझे लग रहा है कि ये काफी है आज के लिए। कोई सवाल 1 मिनट में तो आप पूछ सकते हैं जलाल साहब, अगर कोई सवाल है आज के लेक्चर में। ये 3 इंपॉर्टेंट जो मैंने आपके सामने स्लाइड्स बयान किए, ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन है कि फेल और जुमला फेलिया की बनावट कैसे होती है। बाकी इंशाल्लाह इसमें जो चीजें आएंगी, जिस तरह जुमला इस्मिया में चीजें आई थी, जुमला फेलिया में भी चीजें आएंगी कि एक फेल में एक फेल होता है, फाइल होता है, मफूल होता है, इसको हम तफसीलन पढ़ेंगे। और जुमला फेलिया में कैसे इनकार किया जाए, कैसे इसमें इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्टरी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बनाए जाएं, या इसमें हम क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंसेस बनाए जाएं। ये पूरा एक लेक्चर है और पूरा तफसीलन है इंशाल्लाह। तो जुमला फेलिया बहुत ही जल्दी खत्म हुआ 9 लेक्चर्स में, मगर जुमला फेलिया में काफी लेक्चर होने वाले हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ कि हमारे लिए सुनना, समझना और सीखना आसान बनाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैर। वय्याकुम।